کہ کس انداز میں اور بھرپور طریقے سے ہم نے جواب دیا ہے، اس پر کچھ ایسی انفارمیشن رہ گئی ہے جو عوام تک ہم نے نہیں پہنچائی، تو وہ آپ بتا دیجئے پلیز۔ دیکھیں جی، ہماری مسلح افواج نے جس دلیری، جس حکمت اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ اور جس مہارت کے ساتھ جواب دیا ہے، اس کی تو پوری دنیا جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا قائل ہے، پوری دنیا کو علم ہو چکا ہے۔ اور اب تو وہ یعنی ممالک جو جن سے ہندوستان نے ہتھیار اور طیارے حاصل کیے تھے، تو وہ الٹا جو ہے وہ ان کو تانے دے رہے ہیں کہ بھیا آپ نے تو ہماری ریپیوٹ بھی جو ہے وہ مارکیٹ بھی خراب کر دی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو خیر اب جس طرح سے میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے تو ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ جسے انڈیا جو ہے وہ تھوڑا ابہام میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے یا پاکستان نے میزائل اٹیک کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان کو یہ حق حاصل ہے انڈیا کے حملہ کرنے کے بعد، لیکن اس نے وہ اپنا حق جو ہے جو کہ انٹرنیشنل لا، جو اقوام متحدہ کا چارٹر آرٹیکل 51 دیتا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے۔ رانا صاحب، ہم دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ میں سفارتی محاذ پر جاننا چاہتی ہوں اس وقت کہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ مارکو روبیو صاحب کا فون آیا اور اس کے بعد سعودی عرب، ترکیہ کے وزیر خارجہ نے آپ سے بات چیت کی ہے، اسحاق ڈار صاحب سے، تو ہم نے دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ ہم تو صرف ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا حق ہے۔ پہل وہاں سے کی گئی۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں یہ 6 اور 7 مئی کا جو اگریشن ہوا انڈیا کا، تو اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ دفاعی حکمت عملی سے اس کو ناکام کیا، اور یہ اس کے بعد پھر اس نے ڈرون کا حملہ کیا، اس کا ہم نے جو ہے وہ اس کو ڈرونز کو تو گرایا، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے کوئی ریٹیلیشن نہیں کی۔ ہاں پھر رات انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ میزائل اٹیک کیا، تو ہم نے جو ان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے وہ انہی تنصیبات کے اوپر کیا ہے جہاں سے وہ میزائل اٹیک ہو رہا تھا۔ تو ہم نے تو اب تک جو ہے وہ ان کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ان کو نشانہ بنایا جہاں سے ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اپنی اس دفاعی حکمت عملی میں حملہ کرنے والوں کا صرف حملہ ہی ناکام نہیں کیا، بلکہ ساتھ جو ہے وہ ان کی مرمت بھی ہو گئی ہے، اور ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ وہ ہزیمت ہوئی ہے انڈیا کی، اور اس کا اکھنڈ بھارت کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس ہزیمت کے لیے جو ہے وہ اب جو ہے وہ سر پیٹ رہا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی عزت بحال کرے اور اپنا اکھنڈ بھارت کا خواب جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے، لیکن اب وہ ہو نہیں سکے گی۔ اب وہ اس کے لیے جتنی کوشش کرے گا وہ مزید جو ہے وہ ناکامی اور اس کی جو ہے وہ بے عزتی اور ہزیمت جو ہے اسے اٹھانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اس وقت سفارتی محاذ پر کیا کچھ چل رہا ہے، اس سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں؟ جی سفارتی محاذ پہ اس مرتبہ یعنی ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یعنی ہم نے ایک بہت ہی جو ہے وہ زبردست قوم ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے، اور اس مرحلے کے اوپر رانا صاحب سمر عباس یہ بتائیں، رانا صاحب سمر عباس یہ بتائیں کہ اب جب کہ پاکستان ہٹ بیک کر چکا ہے، بھرپور جواب پاکستان دے چکا ہے، تو اب حالات کی کس طرف جانے کے امکانات ہیں؟ کہ کیا آج سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈی اسکیلیشن ہو جائے گی، معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے؟ اب دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ اس مرتبہ ہم نے ایک بہت زبردست قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں اس مرحلے کے اوپر وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وہ حکومت ہو، وہ اپوزیشن ہو، وہ میڈیا ہو، وہ دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو، مذہبی ہو، جو ہے وہ سیکولر ہو، سبھی میں اتنا اتفاق اور اتنا قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہمیں ہر محاذ پہ جو ہے وہ کامیابی ہوئی ہے۔ فوجی محاذ پہ بھی میڈیا، اب آپ دیکھیں کہ میڈیا کس طرح سے پوری دنیا میں
हमारे मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनी है और उनका मीडिया जो है वो बिल्कुल पिट के रह गया। एग्जैक्टली वो अपनी हुकूमत को ताने दे रहा है कि भी आपने तो हमारी जो है वो रेपुटेशन ही जो है वो खराब कर दिया, हमसे गलत खबरें आपने जो है वो चलवाई हैं। इसी तरह से सफारती महाज पे भी ये, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा कि पहली मर्तबा सफारती महाज पे इंडिया को हमने, पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया। पूरी दुनिया में उसका बयानिया जो है वो इस मर्तबा बिका ही नहीं, लोगों ने, पूरी दुनिया ने बाई बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरी दुनिया जो हमारे साथ खड़ी है और वो ये समझ रही है दिल से कि वो अग्रेसर है, उन्होंने अग्रेशन किया है, हमने सिर्फ अपना जो है वो दिफा किया है। तो इसलिए पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इंडिया को बड़ी मायूसी हुई है इस बारे में। राणा साहब, स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो व्हाट काइंड ऑफ रोल इज अमेरिका प्लेइंग राइट नाउ? देखें, अमेरिका जो है वो ये तो चाह रहा है कि डी एस्केलेशन हो और बाकी हमारे दोस्त ममालिक भी जो है वो चाह रहे हैं, लेकिन हमने जो उनके सामने, हमारे वजीर खारजा ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके सामने सारी चीज रखी है कि जी हम तो पहले दिन से, जब से पहलगाम का वाकया हुआ है, हम तो उस वक्त से जो है वो पूरी दुनिया के सामने ये बात लेके खड़े हैं कि जी हमें हमारी इंक्वायरी करें, हमारी इन्वेस्टिगेशन करें, जहां कहें, जिस कमीशन में कहें, हम पेश होकर अपनी सफाई देने को तैयार हैं। हमने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया कि हम कभी भी जो है वो पहल नहीं करेंगे, हम अपने, हमारी तरफ से कोई अग्रेशन, कोई एक्शन नहीं हुआ और नहीं हुआ। तो इसके बावजूद जब ये यकतरफा तौर पे एस्केलेशन जो हो रही है, तो इसको तो फिर इसका इलाज तो फिर उसी के पास है ना जो कर रहा है। तो राणा साहब, आपको कितना इम्कान लग रहा है कि अब डी एस्केलेशन की तरफ हालात चले जाएंगे? जिस तरह से इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी हो रही है, पाकिस्तान अपना जवाबी वार भी कर चुका है, भारत के अंदर से भी अब जो है वो बयानात इसी तरह के आ रहे हैं कि अब कोई दहशतगर्दी हुई तो फिर हम करेंगे। तो आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है डी एस्केलेशन के बारे से, कितना कोई इम्कान इसका लग रहा है? देखिए, भारत जो बात कर रहा है उसका तो एतबार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उसने 2 मरतबा इस तरह से किया है। अलबत्ता ये जरूर है कि बाकी जो ममालिक जो हमारे दोस्त भी हैं और उनका दुनिया में एक रोल, किरदार भी है, अब देखें ये उनके ऊपर मुनसर है कि वो इस बारे में। राणा साहब, इसहाक डार साहब ने कहा था कि कौमी सलामती के मुशीरों का राबता हुआ है, डीजीएमओज के अगर राब्ते हो रहे हैं तो बैकडोर क्या कुछ चल रहा है और डेवलपमेंट के कितने चांसेस हैं? देखिए, इसमें जो है वो ये जो डीजीएमओ के लेवल पे जो बात होती है, वो बात, उसकी नोयत कुछ और होती है। उसे आप इस बात से जो है वो उसका उत्पादन नहीं उसे कर सकते। वो तो एक, आपको पता है कि वार जोन में भी जो है वो एक राब्ता, एक चीज होती है, लेकिन इस हिस्से में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो जब तक DGISPR की तरफ से नहीं आती तो हम इस बात की जो है वो तस्दीक नहीं कर सकते। अच्छा राणा साहब, वज़ीर आज़म ने भी ये खिताब करना है आज और आवाम को एतमाद में लेना है, तो उससे मुतालिक आप बता सकते हैं हमें कुछ? जी देखें, आज सुबह एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने की है। उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी को, अपनी गवर्नमेंट के जो भी कंसर्न लोग थे उनको भी एतमाद में दिया। उसके बाद फिर आज उन्होंने पूरी मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी और मजहबी जमातों को भी, दूसरों को भी, सबको, सबके साथ राब्ता किया है, सबको एतमाद में दिया है और इवन PTI को भी जो है वो एतमाद में दिया है। PTI के जो चेयरमैन है एक्टिंग गौहर खान साहब, उनसे भी बात की है। तो इसी सिलसिले में वो फिर पूरी कौम को भी एतमाद में लेना चाहते हैं। तो वो जो भी वाकयात गुजरे हैं पिछले कोई तकरीबन 1 हफ्ते में, पिछले 5 दिनों में, तो उसके ऊपर जो है वो कौम को एतमाद में लेंगे। राणा साहब, यहाँ से अगर खुदा खास्ता हालात बिगड़ते हैं, भारत फिर कोई अगर करता है, तो फिर आपको क्या, आपकी रीडिंग क्या है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, फिर हालात किस तरफ जाएंगे आगे? देखिए, इसमें जो कन्वेंशनल वार है, जिसमें ये दुनिया ये कहती थी, हमें तो अपने ऊपर पूरा एतमाद था, हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पे पूरा भरोसा था
दुनिया ये कहती थी कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान क्योंकि 5-6 गुना बड़ी ताकत है, उसकी इकॉनमी बड़ी मजबूत है, उसके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसके पास बड़ा असला है, बड़ी फौज है, तो कन्वेंशनल वार में जो है वो पाकिस्तान पे हावी होगा। तो हम भी समझते थे या बात करते थे कि जी हम अपना दिफा जो है वो आखिरी हद तक जाके करेंगे। तो हमें भी उस वक्त में थोड़ा सा ये होता था कि शायद कन्वेंशनल वार में वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारी मसाला अफवाज ने तो कमाल कर दिखाया है। Exactly. कन्वेंशनल वार में इंडिया को जो है वो आउट क्लास कर दिया है। बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल है कि ये हजीमत ही उठानी पड़ेगी इसको, इंडिया को। अगर 2 मरतबा उठा बैठा है, अगर तीसरी चौथी मरतबा भी अगर उसकी मर्जी है तो वो आजमा ले। राणा साहब, वो जो खित्ते में भारत के जो एक अजारादारी के अजाइम थे वो भी बड़ी बुरी तरह से शटर हुए होंगे आज के इस वाक़े के बाद, जिस तरह से हमने भारत का जोम तोड़ा है। जो भारत जो है बांग्लादेश को, नेपाल को, बाकी छोटे वालों को बगल बचा रियासत बनाने की जो एक उसकी रविश थी, लगता है वो भी अब खत्म हो जाएगी सारी। जी, वो बगल बच्चा रियासत क्या, वो तो इस पूरे इलाके में खुद को जो है वो अब खुद को आलमी ताकत, सुपर पावर के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दिया था उसने। और वो कह रहा था कि मुझे सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल जो है वो मेंबरशिप दी जाए। तो उसका तो वो अखंड भारत का जो ख्वाब है वो तो उसका तो बैठा ही बैठ गया है। और यही वो हजीमत है कि जो उसे अब बैठने नहीं दे रही। वो जो चाह रहा है कि मैं किसी तरह से जो है ना ये अपनी बालादस्ती जो है ना वो साबित कर दूं। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो पूरी दुनिया को भी मालूम हो गया है, और उसे भी मालूम हो जाएगा कि ये बालादस्ती जो है ये पाकिस्तान की मसल्ह फौज जो है और हमारी फौज की जो बहादुर और पुरअज़म लीडरशिप है वो ये बालादस्ती नहीं कायम होने देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि जहां से पाकिस्तान को हिट किया गया, जहां से हमला किया गया, पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए, बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स को निशाना बनाया गया है और हमने अपना हक़ के दिफा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम दुनिया को भी बार बार ये बावर करवाते रहे कि भारत तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर रहा। हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया और भारत को बताकर जवाबी वार किया, और जवाबी वार भी ऐसा किया कि भारत इस वक्त चीखें मार रहा है और पूरी दुनिया में इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है।